بلیٹن کا آغاز کر رہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی پی 206 خانیوال میں سیاسی پاراہائی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ چکی ہے۔ لیگی کارکنان کا عطا تارڑ کی سربراہی میں پی پی امیدوار میر واسق سرجیس حیدر کی رہائش کا پردھاوا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے۔ حسنین اولک کی رپورٹ دیکھیے۔ پی پی 206 خانیوال میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا۔ پی پی رہنماؤں نے تھانہ سٹی خانیوال میں نون لیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق کا کہنا تھا کہ ملک عبدالغفار، مرکزی رہنما عطا اللہ تارڑ، سعد خان کانجو، مقبول شہزاد بھٹا، سابق صوبائی وزیر وحید ارائی نے نون لیگ کے امیدوار رانا سلیم کی سربراہی میں ان کے گھر کے باہر ہنگامہ آرائی کی۔ خانیوال کی عوام کے سامنے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے، عیاں کر دیا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی پرامن رہیں گے۔ وہ اپنی شکست کو دیکھ کر اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا۔ انشاءاللہ مجھے خانیوال کی عوام سے امید ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پہچان لیا ہوگا اور آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ حیدر زمان قریشی کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کے گلو بٹوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ پی ایم ایل نوٹ کے لیڈران اور ان کے گلو بٹوں کا لشکر جو ہے کلاشنکوفوں کے ساتھ انہوں نے دھاوا بولا۔ پہلے انہوں نے نعرے بازی کی گیٹ پہ اور ہمارے گیٹ کے اوپر جو گھر کا گیٹ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو خواتین تھیں ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہ رکھتے ہوئے تقدس پامال کیا اور اندر گھسے۔ رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے لاہور سے گلو بٹ منگوائے ہیں۔ عطا تارڑ کی سربراہی میں بھونڈی حرکت کی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عطا تارڑ صاحب سے، جو کہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں مسلم لیگ نون کے، کہ اگر آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ گلو بٹ جو داخل ہوئے ہیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے، میر صاحب ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 206 کے، ان کے گھر پہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا، اگر کسی کا زندگی چلی جاتی، تو خانیوال کا نقصان کون پورا کرتا؟ نوابزادہ افتخار احمد خان نے الیکشن کمیشن سے تمام پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ نوٹس لیں اور الیکشن والے دن تمام پولنگ سٹیشنز پر رینجرز تعینات ہوں اور تمام پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا جائے۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ گلو بٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وقت کم اور مقابلہ سخت۔ پی پی 206 خانیوال میں انتخابی مہم کا آخری روز جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ تمام امیدواروں کی جانب سے جیت کے دعوے، فیصلہ 16 دسمبر کو ہوگا۔ محمد ندیم مغل کی رپورٹ دیکھیں۔ کون بنے گا پی پی 206 کا سلطان؟ 16 دسمبر کو سجے گا ضمنی انتخاب کا میدان۔ پی پی 206 خانیوال کا سیاسی میدان گرم، آخری روز انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق سرجیس حیدر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم نے بھرپور کمپین کی، 16 دسمبر کو حیران کن نتائج دیں گے۔ الحمدللہ ہماری کمپین مکمل ہے اور 16 دسمبر کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، غریب عوام کی جیت ہوگی، خانیوال کی جیت ہوگی۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹری شکیلہ احمد نواز کی بھی ڈور ٹو ڈور کمپین، اپنے امیدوار کی جیت کا دعویٰ۔ جو حالات و واقعات ہیں، جو انشاءاللہ تعالی سارا ووٹ شیئر کا نکلے گا اور ہمیں بہت بہت بڑی کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ہم نے اگر 10 گھروں میں کمپین کی ہے نا، تو 9 گھروں میں سے ہمیں نون کا ہی سپورٹر ملے ہیں۔ خانیوال میں نون لیگ کے دفتر کے باہر لیگی خواتین کی نعرے بازی۔ شائستہ لودھی کا کہنا تھا 16 دسمبر کو خواتین بھی بڑی تعداد میں ووٹ کریں گی، ووٹ کو عزت دو کا نتیجہ 16 دسمبر کو آئے گا۔ ویمن یوتھ ونگ نے بہت محنت کی ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت امید ہمیں ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت اچھی لیڈ سے یہ الیکشن جیتیں گے۔ تحریک لبیک کے امیدوار شیخ محمد اکمل کا کہنا تھا کہ ان کی جیت پکی ہے۔ پاکستان تحریک لبیک کا پیغام ہے، گھر گھر میں پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ 16 دسمبر کو شام کے وقت پتہ چلے گا، جب صندوقیاں اتنی بھاری ہوں گی، ہر طرف سے ہمارا لبیک کا ووٹ نکلے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے بھی آخری روز بھرپور کمپین کی گئی۔ ورکرز اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پرعزم۔ پی پی 206 کا فاتح کون؟ فیصلہ 16 دسمبر کو ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی نیوز خانیوال۔ پی پی 206 میں انتخابی میدان 16 دسمبر کو سجے گا۔ الیکشن کمیشن نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ محمد ندیم کی رپورٹ دیکھیے۔
इलेक्शन कमीशन ने PP 206 में जिमनी इलेक्शन के लिए कमर कस ली। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद शाहिद का कहना था कि हलके में 183 पोलिंग स्टेशन 540 बूथ कायम किए गए हैं। कल से सामान की तरसील शुरू होगी। और आज तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग अफसर साहब ने बुलाया हुआ था और रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसकी ट्रेनिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे दी गई है कि किस तरह उन्होंने 16 दिसंबर की रात को जब काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो अपना नतीजा जो है किस तरह उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्निंग अफसर साहब को भिजवाना है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का मजीद कहना था कि सामान की तरसील के लिए 188 गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते साथ होंगे। इंतजामात तमाम किस्म के मुकम्मल हैं, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और कल इंशाल्लाह रिटर्निंग अफसर साहब जो 183 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग बैग्स दे देंगे। इस हवाले से ये है कि 183 पोलिंग स्टेशंस के लिए 188 गाड़ियों का जो है वो बंदोबस्त किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का ये भी कहना था कि PP 206 में 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबी मार्का 16 दिसंबर को होगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान सफाई कंपनी की नहली मसरूफ तरीन शाहराहें कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। कूड़ा शहर के अंदर ही फेंका जाने लगा। नॉर्दर्न बाईपास रोड डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान सफाई कंपनी शाहराह को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। कूड़े के ढेर नादरन बाईपास रोड पर फेंक दिए। तोंसा, लैया और चौकाजम को मुल्तान से मिलाने वाली सड़क पर कचरे के ढेर, सांस लेना दुश्वार हो गया। शहरी कहते हैं गंदगी फैलने से बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे कचरा जड़ा ना शहर च उठा के इतना आके सट देने वाला आन के लोग इनको भाल आ रहे, सारा धुआं ही धुआं फैल वेंदे। रोड दे उत्ते नजर कोई शय नहीं आंदी। एक पासे रखा वने ना, एक पासे मेल गिन, एक पासे इकट्ठा कर गिन, ये कूड़ा किरकट है, मतलब एक पासे इकट्ठा कर गिन, अलग कर गिन। कचरे के बाइस पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। नॉर्दर्न बाईपास से हेड मोहम्मद वाला तक रोड कचरा कुंडी में तब्दील। शहरी कहते हैं कचरा रोड पर ही फेंक दिया जाता है। आग लगाने से मुजरे सेहत धुआं बीमारियों का सबब बनता है। ये कचरा फेंक रहे हैं, ये हुकूमत का काम है। जहाँ पे ये कचरा न फेंकवाएं, जहाँ पे रोड क्रॉस चल रहा है, जहाँ बीमारियां, ये धुआं जो है, लोग आग लगा देते हैं कूड़ा। गंदगी और बदबू के बाइस मुल्तान के बासी परेशान हैं, लेकिन सफाई कंपनी ने अपनी रविश ना बदली। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। इंतजामिया या ताजे कसूरवार कौन है? सब्जी मंडी में कचरे के ढेर लग चुके हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई के बाद दोबारा गंदगी के ढेर मौजूद है। फ्रेश फ्रूट भी कचरे के ढेरों में शामिल हैं। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की सब्जी मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। ताजिर गली सड़ी सब्जियां और फ्रूट्स रोड पर फेंकने लगे। दुकानदार कहते हैं सफाई कंपनी के एहलकार सुबह सफाई करके चले जाते हैं, इसके बाद दोबारा कचरे के ढेर लग जाते हैं। तो यही टाइम होता है हमारा कमाने का, यही जो है ना कंटेनर आके खड़े हो जाते हैं। हाँ, 11 बजे से पहले बस ये हुकूमत से ये अपील है कि जो है ना इन कंटेनर को बंद किया जाए, लिहाजा हम सब जो है ना हमारे साथ ताउन किया जाए। बस सब्जी और फलों की आड़त भी कचरे में आ गई। गली सड़ी सब्जियों के बाइस बदबू फैलने लगी। ताजरों का कहना था कि इंतजामिया कूड़ेदान मुहैया करे। रोड पर कचरा फेंकना आड़तियों की मजबूरी बन जाती है। सब्जी मंडी का कचरा साफ हो जाता है, उसके बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। जैसे ही वो जाता है महकमा, उसके बाद हल्की हल्की फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। इंतजामिया की गफलत और ताजिरों की लापरवाही ने सब्जी मंडी को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। शहरियों के लिए सब्जियां फरूट खरीदना महाल हो गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। वासा मुल्तान की नाकिस मनसूबाबंदी, सीवरेज पाइपलाइन खराब। खानेवाल रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं, जबकि गटरों के पानी के बायस ताफुन फैल चुका है। वासा मुल्तान की नाकस हिकमत अमली। खानेवाल रोड पर सियाल होटल के करीब सीवरेज पाइपलाइन खराब, गटरों का पानी सड़क पर जमा, ताजिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। दुकानदार है, हम यहाँ पे हमारा कारोबार है, क्या करें, लेकिन इस पानी की वजह, और जब इन्हें बुलाते हैं तो ये आते नहीं है। अगर आएंगे तो पहले डिमांड करेंगे, पैसे दोगे तो हम काम करेंगे, वरना हम नहीं काम करते। पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, हम बाहर नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो हमारे कपड़े खराब होते हैं। ताजिरों का कहना था कि गंदे पानी के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। बदबू के बायस दुकान पर बैठना मुश्किल है। ये डिमांड करते हैं हमें चाय दें, हम अफसरों को पैसे खिलाते हैं, हमें पैसे दें, तो हम इतने परेशान हैं। दुकान के जो है नीचे नींवों में पानी चला गया है। गरीब आदमी किधर से पैसे भरें, आप मेहरबानी करके सागुए कम करवा दो। ताजिरों ने आला हुकाम से मसला फौरी हल कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली शहर में तजावुजात की भरमार है। प्रेस क्लब और फयाज बाग के तरफ रेहड़ी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा बरकरार है। जिला इंतजामिया के लिए तजावुजात का खात्मा चैलेंज बन गया है। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। रिक्शा माफिया और रेहड़ीबान मुजफ्फरगढ़ के बन गए डोम। मुजफ्फरगढ़ में तजावुजात की भरमार, शहरी परेशान। कचहरी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, जंग मोड़ चौक पर तजावुजात के खात्मे का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं सबसे ज्यादा मसला दानिश स्कूलों के इतराफ में है, जहाँ रेहड़ीबानों और रिक्शा माफिया का कब्जा है। रेहड़ी माफिया छाया हुआ है। मुजफ्फरगढ़ शहर के अलावा जो स्कूल की सराउंडिंग में जो रोड्स हैं वो भी उनसे नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार दरखास्तें दी, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली आड़े आ गई। तजावुजात के बायस स्कूलों में छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। लोगों ने अपने स्टैंड खुद ही बना लिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिला हुकूमत की तरफ से स्टैंड दिए गए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। स्कूल की जब छुट्टी होती है और बच्चियों के लिए पैदल चलना नामुमकिन हो गया है। वालिदैन इस हवाले से बहुत टेंशन का शिकार है, परेशानी के शिकार हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन नाजायज तजावुजात के खिलाफ एक्शन ले। शहरियों का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने और मुश्किल बुनियादों पर ऑपरेशन किया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही टीवी, मुजफ्फरगढ़। महंगाई की रहीम यार खान के किसान हो जाएं तैयार, अब बीज भी सस्ता नहीं मिलेगा। माली मुआवनत बंद होने पर रिसर्च सेंटर्स बोली के जरिए बीजों की वैरायटी फरोख्त करेंगे। आसिम सदीक रिपोर्ट। काश्तकारों के लिए नई परेशानी, अब बीज भी सस्ते नहीं मिलेंगे। हुकूमत ने ज़रूरी तहकीकाती रिसर्च सेंटर्स की माली मुआवनत बंद कर दी। अब किसानों को सस्ता बीज नहीं मिलेगा। रिसर्च सेंटर्स ने बोली के जरिए बीजों की फरोख्त शुरू कर दी। ज्यादा बोली वाली सीड कंपनी को ही बीज मिलेगा, जिससे रेट बढ़ जाएंगे। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास माजिद का कहना था, अब इजारादारी कायम होगी, किसानों को महंगे बीज खरीदना पड़ेंगे। ऑक्शन का जो मसला है, उससे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो ये कि वो जो नई वैरायटीज़ हैं वो किसी एक या दो कंपनीज के पास आ जाएंगी और उससे होगा ये कि जी मुंह मांगे दाम पे ऑक्शन होगी और मुंह मांगे दामों पे आगे वो सेल होगा। तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो अदारों को प्रॉपर फंडिंग करें। नायब सदर चैम्बर वकास माजिद ने इजारादारी के खात्मे के लिए रिसर्च सेंटर की इनकम बढ़ाने की तजवीज दे दी। कहते हैं सीड के लिए जारी हर टैग पर मखसूस रकम बीज बनाने वाले रिसर्च सेंटर के लिए मुख्तस कर दी जाए, जिससे बीज भी सबको मिलेगा और कीमत भी नहीं बढ़ेगी। कैमरामैन अनवर सवेर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। उधर शहर ओलिया में सरकारी मुलाजमीन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। कचहरी रोड पर एहतजाज जारी है, जबकि जनूबी पंजाब भर से मुलाजमीन की भी शिरकत है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कचहरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सरकारी मुलाजमीन महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। एपका के जेर एहतमाम एहतजाज में जनूबी पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें फौरी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हमारा पुरअमन एहतजाज है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी इस महंगाई में गुजारा नहीं होता, अपग्रेड किया जाए और तनख्वाह में इजाफा किया जाए। एहतजाज के दौरान नारेबाजी, हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत को गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं। महंगाई आप देख रहे हो, पेट्रोल कहाँ है, भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे, फीसें कहाँ से भरें। हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमारे जायज जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। एपका के जेर एहतमाम एहतजाज के दौरान मुल्तान कचहरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद मार्च का भी ऐलान। एपका मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत अपने अखराजात पर नजरसानी करे, अवाम के लिए मुश्किलात मजीद ना बढ़ाए, क्योंकि इन अखराजात में तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। कैमरामैन वसीम के साथ मौसम मुल्तान। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी बल्दियाती इदारों की बकाया मुद्दत के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी बल्दियाती इदारों की बकाया मुद्दत के लिए सरगर्म, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। जो इदारे टूटे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 25 मार्च के फैसले में इल्लीगल करार दे चुकी है और साथ साथ ये भी कह चुकी है कि आइन से मुतसादिम फैसला था ये। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये अल्ट्रा वेरिस कॉन्स्टिट्यूशन था, तो जो 22 माह गैर कानूनी तौर पर हमें पीटीआई गवर्नमेंट ने घर रखा, उसका हिसाब किताब लिया जाना बहुत जरूरी है। मेयर बहावलपुर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की रिट दायर है। हमारा मौकफ है कि 22 माह की बकाया मुद्दत के इख्तियारात भी दिए जाएं। आज भी हमारी पेशी थी लाहौर में, जहां पर ये रिमार्क्स दिए गए कि ये जो ऑर्डिनेंस में इन्होंने लिखा कि हमारी मियाद 31 को खत्म हो रही है, वो इलीगल है, क्योंकि हमारे केसेस जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है
और उससे पहले ये डेट दी नहीं जा सकती है। और इसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो निज़ाम है 2013 का, उसके मुताबिक या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप किसी तरह भी अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। अकील नजम हाशमी का मजीद कहना था कि पंजाब सरकार बल्दियाती इदारे खत्म करके उन पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खुशाब के सूबाई हल्का तरासी के मकीनों के लिए खुशखबरी, तरक्याती कामों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। MPM मलिक गुलाम रसूल की ग्रांट से काम शुरू हो चुके हैं। खुशाब के हल्का PP 83 के मकीनों की सुनी गई। 1 अरब रुपए की ग्रांट से शहर भर में तरक्याती काम शुरू हो गए। शहर से गांव से राब्ता सड़कों की मुरम्मत हो गई। शहर भर में PCC स्लेब, टफ टाइल्स भी लगेंगी। शहर को हकीकी मानों में मॉडल बनाएंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल अमीर हैदर संगा का कहना था कि PP 83 के साथ हमेशा सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया, अब अपनी निगरानी में काम कराएंगे। हमारा हल्का PP 83 पसमानदगी का शिकार रहा है। यहाँ पे नारे तो लगाते रहे हैं कि शहंशाह तामीरात ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इंशाअल्लाह हर चीज़ अलिफ से शुरू होकर गली महल्ला, कोई गली नहीं रहेगी, कोई गली की सीवरेज नहीं रहेगी। सारे मसाइल जो हैं इनको तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तरक्याती काम शुरू होने से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि अहले इलाका को बुनियादी मसाइल से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन उमैर अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन करीब आ चुके हैं। इंतखाबी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चौधरी अतर अजीज एडवोकेट ने उम्मीदवारों की जानिब से लगाए गए तशहीरी पैराफ्लेक्स से उतरवा दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां शुरू। उम्मीदवारों ने कुचहरी में अपनी तशहीर के लिए पैनाफ्लेक्स लगा दिए, लेकिन चेयरमैन इलेक्शन कमेटी चौधरी अतर अजीज एडवोकेट ने उतरवा। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अतर अजीज एडवोकेट का कहना था कि पैनाफ्लेक्स लगाना इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीदवारान कैंपेन के दौरान वोटर्स को खाना भी नहीं खिला सकते। उन्होंने कहा कि ज्यादा अखराजात से नौजवान वुकला का रास्ता रुकता है। उम्मीदवार सिर्फ हैंड कार्ड के जरिए कैंपेन कर सकते हैं। वुकला के जो इलेक्शन बार एसोसिएशन के होते हैं, इसमें कोई कैंडिडेट पैनाफ्लेक्स नहीं लगा सकता, ना कोई होर्डिंग लगा सकता है। सिर्फ 3/5 का एक कार्ड जो है सिर्फ उसके जरिए अपनी कैंपेन कर सकता है। वुकला ने भी इलेक्शन कमीशन के इकदामात को सराहा। कहते हैं इस तरह इलेक्शन अखराजात कम होंगे और कम वसाइल रखने वाले वुकला को भी सपोर्ट मिलेगी। हर नौजवान वकील इलेक्शन में हिस्सा ले सके। अखराजात बचाने का भी ये बेहतरीन अंदाज है और बेहतरीन तरीका है, ताकि हर पढ़ा लिखा जो वुकला के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है वो बेचारा सिर्फ अखराजात न होने की वजह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट बार अतर अजीज का कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और अब बात करते हैं पोलियो कैंपेन के हवाले से। 2 कतरे पिलवाएं और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्तान डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। डिवीजन भर में 7493 टीमें 19 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। मुल्तान डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। आज भी शहर और अवामी मुकामात पर बच्चों को कतरे पिलाए गए। जिला मुल्तान में 2200 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। ट्रेनें रुकती हैं, हम अंदर जाकर सबको पिलाते हैं और जितना ज़्यादा हो सके हम उतना टारगेट अचीव करते हैं अपना, और अनकरीब इंशाल्लाह पोलियो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से। 200 से ज्यादा टीमें अवामी मकामात पर तैनात हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को 2 कतरे पिलवाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। जनरल बस स्टैंड समेत अवामी मकामात पर भी पोलियो कैंप कायम है। कहते हैं कि हम पिलवा के आए हैं, फिर हम उनको कन्वेंस करते हैं कि आप पिलवा लें यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को यहीं टारगेट करें, यहीं पोलियो के कतरे पिलवाएं, ताकि जो लोग सफ़र में हैं वो पी के आ सके। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के तमाम 11 अजला में भी इंसदादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। मुहिम के पहले रोज जनूबी पंजाब में 1,65,228 मेहमान बच्चों को भी कवर किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। को खबर ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। महकमा तालीम के वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई है। मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी किया जाएगा।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट सामने आया है। महकमा तालीम के वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई है। मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक की तजवीज़ पर इत्तिफाक हुआ है। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी किया जाएगा। मेपको दर्जा चरहारा मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मेपको ने माहाना अलाउंस में दोगुना इजाफा कर दिया है। कासिब, नायब कासिब, ड्राइवर्स और दीगर मुआविन अमला नए साल से डबल अलाउंस वसूल करेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेपको ने वजारत फाइनेंस की हिदायत पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन का खसूसी अलाउंस 2 गुना कर दिया है। वो तमाम मुलाजमीन जो मुस्तकिल हुए हैं इन्हें माहाना अलाउंस अब पहले से डबल मिलेगा। मेपको ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में दर्जा चहारम मुलाजमीन का फैसला किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन ने तमाम मुतल्लिका दफातर को अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सोशल वेलफेयर का एहसन इक़दाम समाजी तंजीम के तावन से ख़ातीन के लिए सीखो और सिखाओ स्किल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। अपना कारोबार शुरू करने के लिए ख़ातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर की जानिब से आवाज़ दो फाउंडेशन के ताउन से ख़ातीन के लिए स्किल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसको सीखो और सिखाओ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ख़ातीन को अमली तौर पर आगे लाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। अपना कारोबार शुरू करने के लिए सीखो और सिखाओ प्रोग्राम के तहत ख़ातीन को टेलरिंग, ब्यूटिशियन, आर्ट वर्क और दीगर हुनर सिखाए जाएंगे। वोकेशनल इंस्टीट्यूट बहावलपुर के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सदर VTI महमूद मजीद का कहना था कि वो बच्चों को हुनर सिखाकर मुआशरे का फाल रुकन बना रहे हैं। बहावलपुर में वोकेशनल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट बहावलपुर महमूद मजीद का कहना था कि बच्चों को हुनर सिखाकर मुआशरे का फाल रुकन बना रहे हैं। बच्चों की तादाद देख के और इनमें जो जोश और जज्बा है उसको देख के बहुत खुशी महसूस हुई है। और जिस तरह से ये बच्चों को ट्रेन करके आगे इस इंडस्ट्री में और कारोबार शुरू करने के लिहाज से इक्विप कर रहे हैं, वो एक बहुत ही मुफीद एक चीज़ है और वो मुआशरे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बड़ा इदारा है और हम ये समझते हैं कि जी ज़कात का अगर इससे कोई बेहतर मुसारफ नहीं हो सकता, जो मतलब टारगेटेड और ज़रूरतमंद लोगों को हुनर सिखाता है और उन्हें खुद कफील करता है। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि बच्चों को हुनरमंद बनाने का अमल एहसन इकदाम है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट की मदद के लिए हाजिर है। प्रेसिडेंट चैम्बर के मुताबिक इंशाल्लाह उसकी पूरी कमेटी जो है, पूरे जो हमारे साथी हैं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करते रहेंगे। अंजुमन ताजरान के लेवल पे भी इंशाल्लाह अपनी जो इन बच्चों के लिए हम वर्कशॉप अरेंज करवाएंगे इंशाल्लाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज यूनुस का कहना था कि हुनरमंदी से मुआशरे में बेरोजगारी का खात्मा होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अच्छे काम पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस हुई। 150 साइंटिस्ट तहकीकाती मकाले पेश करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में होने वाली तहकीकात से मुतालिक 3 रोजा बैन अवी कॉन्फ्रेंस 150 साइंसदान अपने तहकीकी मकाले पेश करेंगे। नैनो डिवाइसेस समेत मौसमियाती तब्दीली के बारे में तहकीकात पेश की जाएंगी। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि चैलेंज का मुकाबला करना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटीज का काम यही होता है जी कि सोसाइटी, इंडस्ट्री या फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको मीट किया जाए। मेरे ख्याल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मकसद भी यही है कि लोगों को अपडेटेड नॉलेज पहुंचे कि आने वाले वक्त में करना क्या है। वाइस चांसलर मीर चाको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम का कहना था कि तहकीकाती इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद जरूरी है। मेरे ख्याल में कि जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च कल्चर का। तो अगर हमने नॉलेज बेस इकोनॉमी डेवलप करनी है तो हमें रिसर्च जहाँ करनी है वहाँ रिसर्च शेयरिंग के एवेन्यूज भी प्रोवाइड करने हैं। डायरेक्टर रिसर्च एंड यंग यूनिवर्सिटी चाइना वांग यंग का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में सीखने और सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। So I think it is good that now Pakistan have the awareness of how to improve their environment, of living environment. And as I staying here, I feel that some several cities are polluted, but some cities are too much good in environment. 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, चीन, आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, स्वीडन, कोरिया, तुर्की, ईरान, इंडिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जनूबी कोरिया, किर्गिस्तान, कतर और श्रीलंका के साइंटिस्ट तहकीकाती मुकाले पेश करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
اسلامیہ یونیورسٹی میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز اور سوشل میڈیا کے صارفین کو ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی دی گئی۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اظہار رائے کی آزادی اور سوشل میڈیا کی معاشرتی ذمہ داریوں بارے 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام جو ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پر ایک ہے، اور اس کا تھیم جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیے دنیا میں اس وقت مختلف حوالوں سے جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر واجد خان کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک کے مندوبین کی شرکت سے طلبہ و طالبات کے علم میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں مختلف اس کی ڈیفینیشنز اور تشریحات کی وجہ سے مختلف لوگ مختلف طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فرانس میں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے امبریلا کے تلے گورنمنٹ نے بھی ان لوگوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی، اور اسی طرح سے مختلف یورپین کنٹریز میں بھی ایسا ہوا ہے۔ میڈیا اسٹڈیز کی جانب سے انٹرنیشنل ایونٹ کا خیر مقدم، طلبہ و طالبات نے ایسے پروگرامز آئندہ بھی کرانے پر زور دیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ورلڈ پری میچورٹی ڈے کے حوالے سے ڈی ایچ کیو اسپتال لیا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر شاہد ریاض، ایم ایس ڈاکٹر سائمہ بطول نے شرکت کی ہے۔ وقت سے قبل بچوں کی پیدائش پر آگاہی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ انچارج IRMNCH ڈاکٹر مزمل کریم، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آصف خان نے بھی شرکت کی۔ میپکو کے ملازم کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ہے، کھیلنے اور تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑی اب صرف کھیلیں گے۔ 110 کھلاڑی ڈیوٹی سے مستثنی قرار، میپکو نے اپنے کھلاڑیوں کو کھیل بہتر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 9 مختلف کھیلوں کے میپکو کے 110 ملازم کھلاڑیوں کو ڈیوٹی سے استثنا دے دیا گیا ہے۔ کوچز اور سپورٹس آفیشلز بھی فیلڈ میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ کھلاڑیوں کی تیاری بھی کروائیں گے۔ ایسے میں 44 ریگولر، 51 کانٹریکٹ اور 15 وظیفہ لینے والے کھلاڑیوں کو کھیلوں کے لیے برقرار رکھا گیا ہے۔ لیا میں بیڈمنٹن کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ عباسین کلب چیمپئن بن گیا۔ فائنل میچ میں فرینڈز کلب کو شکست ہو گئی ہے۔ زاہد سرفراز نے رپورٹ تیار کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسپورٹس کمپلیکس لیا میں بیڈمنٹن کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ADCR اشفاق سیال اور سیاسی و سماجی رہنما مہر طفیل لوہانچ تھے۔ مہمانوں نے ٹیموں کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے ایک پورا سپورٹس کیلنڈر جو ہے پورے سال کے لیے وہ ترتیب دیا ہے، جو کہ ایک بڑی یونیک فیچر ہے ہماری نیشنل لائف کی۔ تو اس سلسلے میں یہ کھیلیں 1 یا 2 دن یا مہینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کھیلیں اب پورا سال چلتی رہیں گی۔ نوجوانوں سے ملنے کا موقع ملا، یقیناً ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کھیل ہونی چاہیے، کھیلوں کے میدان آباد ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کی ایک اچھی کاوش ہے، گورنمنٹ کی اچھی کوشش ہے، یقیناً یہ قابل تحسین کام ہے۔ میچ کے اختتام پر ٹیموں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کھلاڑیوں نے بیڈمنٹن کے شاندار مقابلے کرانے پر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کی کاوشوں کو سراہا۔ بڑی محنت کر رہی ہے یہاں کی ٹیم، اور یہ ان کا سپورٹ سے لگاؤ ہے، اور ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ جمنیزیم بھی یہاں پہ آباد ہے، جو اپنی فٹنس کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور بیڈمنٹن کے لیے بڑی اچھی کاوش ہو رہی ہے۔ بیڈمنٹن مقابلوں سے ٹیلنٹ کھل کر سامنے آیا۔ یہی نوجوان کل ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت